Hello students, I am Suruchi Jain, your English language teacher. Today I will explain lesson number 2 of your textbook Flamingo. The name of the chapter is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, and it is written by Anis Jung. See this chapter, the following chapter is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Now here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. This chapter is divided in two parts, containing the author's first-hand experience with poverty and traditions prevailing in some parts of India. The first part describes the plight of the poor ragpickers of Simapuri, and the second part describes the miserable conditions of the bangle makers of Firozabad. Now I will start explaining the chapter line by line, and I'll explain the chapter in both the languages, Hindi as well as English, for better understanding. Now I'll start. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. Now, here the author, every morning, this writer, Anis Jung, she sees a young ragpicker boy who visits the garbage dump near her house and searches for gold in it. Now here the writer has used this word gold ironically because though the garbage dump is full of useless, thrown away things, still he shuffles it so minutely as if he'll get something as precious as gold from it. ना इधर जो राइटर है अनीस जंग, उन्होंने ये गोल्ड वर्ड क्यों यूज़ करा है, वो बताती हैं कि वो रोज़ जो है सुबह एक रैग पिकर, वो जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं जो सड़कों पर कूड़ा बीनते हैं, ऐसे एक बॉय को डेली वो देखती थी कि वो ऐसे सर्च करता है कूड़े में जैसे मानो उसे कोई गोल्ड हाथ लगने वाला है, क्योंकि जो रैग पिकर्स होते हैं वो जो आसपास के जो कूड़ा होता है वो उठा करके उसमें से जो चीज़ें वो बेच सकते हैं आगे, वैसा कूड़ा वो बीन करके आगे बेचते हैं. तो इसीलिए राइटर ने ये वर्ड गोल्ड यूज़ किया है, क्योंकि वो ऐसे कूड़े में से ऐसे जो ना जो गार्बेज डम्प्स हैं, हीप्स हैं, उनमें से कूड़ा ऐसे छांटता था जैसे कि उसे कोई गोल्ड मिलने वाला है. द बॉयज़ नेम इज़ साहिब. His home in Dhaka was in the middle of lush green fields. They had left it many years ago and he does not even remember it anymore. His mother had told him that there were many storms which destroyed their homes and fields. अब वो बताता है कि उसकी मदर ने उसको बताया है कि वो कभी ढाका में रहा करते थे और खूब ग्रीन फील्ड्स में जो था उनका घर था, लेकिन वहाँ पर क्योंकि बहुत स्टॉर्म्स आए उसकी वजह से उन्हें वो ढाका में जो उनका घर था वो छोड़ करके यहाँ पर आना पड़ा और अब उसे कुछ याद भी नहीं था अपने घर के बारे में. So they left home and shifted to the cities in search of gold. The writer again says looking for gold in the big city. Gold, here refers to something precious which is not available in their hometown. Things like shoes, money, bags, etc. for the children and food, clothing, shelter as means of survival for their parents. The boy searches for such precious things in the garbage dumps. One day the writer questions Sahib and asks him the reason for shuffling through the garbage. अब एक दिन जो राइटर है वो उसको पूछती है उसको कि ये ऐसा क्या करते हो, इसको क्या ढूंढते हो तुम्हें इस गार्बेज डंप में से. अब वो क्या जवाब देता है. स्टूडेंट्स रीड द वेरी फर्स्ट लाइन, वाई डू यू डू दिस. अब यहाँ पर जो राइटर है वो साहिब से पूछती है कि तुम ऐसा करते क्यों हो. शी आस्क्स हिम फॉर द रीज़न. नाउ आई विल स्टार्ट विद द सेकेंड पैराग्राफ. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. अब वो एकदम केयरलेसली उसको क्या जवाब देता है, साहिब राइटर को जवाब देता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, उसके पास और कुछ है ही नहीं मेरे पास करने को कुछ. अभी राइटर क्या बोलती है,
Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I'll go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. ना hollow here means meaningless, यानी वो उसे बोल रही थी ना how hollow the advice must sound, यानी how hollow यानी क्या, कितनी यूजलेस, कितनी मीनिंगलेस ये एडवाइस जो उसने दी थी, अनीस जंग ने साहेब को दी थी गो टू स्कूल कह करके, तो बाद में वो सोचती भी हैं कि कितनी मीनिंगलेस उसके लिए एडवाइस होगी. नाउ साहेब रिप्लाइज टू अनीस जंग दैट ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू अदर देन रैग पिकिंग. नाउ हियर अगेन द राइटर सजेस्ट दैट ही शुड गो टू स्कूल. Now she realizes that her advice is meaningless for the poor boy. उस poor boy के लिए जिस अब उसके लिए तो ये worthless थी, उसके लिए useless था उसको ये advice. Now what he replies? He replies that there are no schools in the area where he lives, and he also assures her that he will go to school when one is built near his house. अब वो बोलता है कि उसको वो श्योरिटी भी देता है कि अगर हाँ एक स्कूल अगर कोई उसके घर के पास अगर कोई बन जाता है, खुल जाता है, तो वो जाएगा पढ़ने. Now here again the writer asked him jokingly मतलब लाइट मैनर, ऐसा नहीं कि खिल्ली उड़ाते हुए, पर जोकिंग वे में उससे पूछते हैं कि अगर वो स्कूल खोले तो क्या वो आएगा वहाँ पर. Yes, he says smilingly broadly. A few days later I see him running up to me. Is your school ready? ना अब उसने तो ये जोकिंग एक मैनर में कहा था, एक बहुत लाइट वे में उसने अनीस जंग ने साहेब को कहा था, और वो उसने एकदम से मुस्कुराते हुए बोला था कि येस एक्चुअली ही अग्रीज कि हाँ मैं तो आऊँगा. अब कुछ दिन बाद वो उसके पास भागते हुए आता है और उससे पूछता है कि इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुमने स्कूल बनाने के लिए बोला था, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया. It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. Now here Sahib says that he would join the writer's school, and after a few days he also runs up to her to ask whether her school is ready. The writer replied that it takes a lot of time to build a school, and she felt ashamed at making a false promise, and she had said because she had said this as a joke and had never intended to open a school, so she felt ashamed of herself. अब क्योंकि उसने ऐसा प्रॉमिस किया था जो कि उसने तो मजाक में कहा था, उसका तो ये इरादा था ही नहीं, ऐसा कुछ उसके माइंड में होता ही नहीं, तो उसको एंड एक्चुअली शी फेल्ट अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ, क्योंकि उसने कुछ ऐसा प्रॉमिस उस बच्चे के साथ किया था जो कि वो मानती ही नहीं थी, कि मतलब उसको था ही नहीं कि वो उसे पूरा कर पाएगी कभी, उसका इरादा ही नहीं था. And now Sahib was not hurt because he was used to such false promises as they existed in large numbers in his empty world. अब साहिब जो है उसको ऐसा कोई फील भी नहीं होता, वो हर्ट फील भी नहीं करता, बिकॉज उसको आदत होती है कि ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस सुनने की और जानने की उसको ये आदत सी हो जाती है. He was surrounded by such false promises made by everyone around him. His world was empty as no promise made to Sahib was ever fulfilled. After months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. Now, barefoot here means wearing nothing in the feet, यानी बिना किसी मतलब जूते चप्पल के घूमना, नंगे पैर घूमना. Now here the writer had known Sahib for a few months when she asked him his name, and what he replied as as if he was making an announcement that his name was Sahib-e-Alam. Now you can imagine the irony. His name was Sahib-e-Alam, और जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन उसको अपने नाम का मीनिंग ही नहीं पता था. तो इस पर राइटर सोचती है कि अगर उसको अपने नाम का मीनिंग अगर कभी पता चल गया तो उसको तो विश्वास ही नहीं होगा. उसके नाम है साहिब-ए-आलम, एंड लुक एट द लाइफ ही इज़ डीलिंग विद. his name was opposite to his life. He went around the streets with a group of friends. It was like an army of boys who did not wear any footwear. यानी वो अपने दोस्तों के साथ
दिन भर ऐसा घूमता रहता था. और दे अपीयर्ड इन द मॉर्निंग लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर्ड एट नून. अब वो सुबह सुबह निकलते थे अपना रैग पिकिंग के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ. उनकी पूरी जो है पलटन, उनकी पूरी फौज निकलती थी, और सब के सब विदाउट एनी फुटवेयर, यानी उन्होंने पैरों में कुछ नहीं पहने रहते थे वो लोग. और दोपहर होते होते तक वो लोग दिखने बंद हो जाते थे, यानी वो अपने 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 घर वापस चले जाते थे. द राइटर कुड रिकग्नाइज ऑल ऑफ देम एज शी हैड बीन सीइंग देम फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स. अब क्योंकि वो पिछले कुछ महीनों से उन साहेब और उसके फ्रेंड्स को देख रही थी, इसलिए वो सब हर किसी एक एक जो रैग पिकर था उन बच्चों को वो पहचानती थी. वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ. He answers simply. Now, the writer asked one of them that why was he not wearing any footwear, and the boy simply replied that his mother did not get them down from the shelf as they were beyond his reach. He did not wear them. अब जवाब देखो वो क्या देता है. एक से जब वो पूछती है एक बच्चे से कि आपने चप्पल्स क्यों नहीं पहनी हुई हैं, तो बोलता है क्योंकि मेरी मदर ने शेल्फ से उतार कर नहीं दी, और उसका हाथ, क्योंकि वो बच्चा था, उसका हाथ तो शेल्फ तक जाता नहीं था, इसलिए उसने कुछ पहना ही नहीं था. And he was barefoot. Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. अब उस पर जो ये अनीस जंकी जो वो एक बच्चे से पूछती है, तो दूसरा बच्चा जवाब क्या देता है? वो बोलता है कि अगर उसकी मदर उसे उतार कर भी दे देती तो भी मैं उसे फेंक देता. और उस जो बच्चा था उसने पैरों में शूज़ तो पहने थे, लेकिन एक पैर में दूसरा और दूसरे पैर में दूसरा शू पहना था. वो पेयर नहीं था, मैचिंग पेयर नहीं था. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Perpetual state of poverty, it means never ending condition of being poor. अब जो second वाला होता है ना, he meant that the boy was not wearing footwear because he did not want to wear one. The writer asked the second boy the reason for wearing a different shoe in each foot. He did not reply and shuffled his feet as he tried to hide the shoes. अब जो राइटर है वो जब दूसरे से पूछती है कि उसने दोनों पैरों में अलग अलग शूज़ क्यों पहने हैं, वो बिना कुछ जवाब दिए बस अपने पैरों को शफल कर लेता है. एंड नाउ अ थर्ड बॉय स्पोक. अब एक थर्ड बॉय जो था वो बोलता है दैट ही वॉज ईगर टू गेट अ पेयर ऑफ शूज़ एज ही हैड नेवर ओन्ड वन ऑल हिज लाइफ. नाउ द राइटर टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ शूज़ टू हाईलाइट द कंडीशन ऑफ दीज बॉयज़. अब जो थर्ड बॉय है वो बोलता है कि ही वॉज ईगर टू गेट अ पेयर ऑफ शूज़, क्योंकि उसके पास कभी अपने जूते थे ही नहीं, तो वो बहुत ईगर था कि उसके पास भी अपने शूज़ हों. नाउ दिस राइटर, शी टेल्स अस दैट शी हैज़ ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री एंड शी हैज़ सीन मेनी चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन द सिटीज़ एज वेल एज द विलेजेस. अब वो बोलती है जो अनीस जंग है वो बहुत सारे सिटीज़ विलेजेस उन्होंने ट्रैवल किया है, वहाँ पर उन्होंने ट्रैवल किया और बहुत सारे ऐसे लोगों से वो मिली और इंटरेक्ट किया है. अब वो बोलते हैं कि जब जब उनसे पूछा गया ऐसे लोगों से, दे हैड रीज़न दैट दे वर बेयरफुट नॉट ड्यू टू लैक ऑफ मनी टू बाय फुटवेयर, बट बीइंग बेयरफुट वाज अ ट्रेडिशन फॉर देम. यानी ऐसा नहीं था कि उनके पास वो इतने पुअर थे कि उनको एक पैर शू भी नहीं खरीद सकते थे, एक जोड़ी फुटवेयर भी नहीं उनके वो अफोर्ड कर सकते थे, बल्कि ऐसा बेयरफुट रहना उनके लिए ट्रेडिशन था. Now here the writer wondered and concluded that the reason of it being a tradition was a mere excuse to explain away a perpetual state of poverty. यानी कि वो मतलब जैसे वो गरीब दिखना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि वो लोग बहुत गरीब हैं, इसीलिए वो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ था वो शो करने के लिए वो बेयरफुट घूमते थे, कि इसीलिए कि एक एक्सप्लेनेशन हो सके कि वो काफ़ी गरीब हैं. They cannot even afford a pair of shoe. I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation.
In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. Now the meaning of desolation. Desolation means the state of being empty, and panting is taking short and quick breaths. Now here the writer narrates a story told by her by a man from Udupi. When he was a young boy, now what this man had narrated to the writer. When he was a young boy, he would walk to his school. On the way, he would cross a temple where his father worked as a priest. He would stop at the temple and pray to God to bless him with a pair of shoes. अब वो बताती हैं, जो नरेटर है वो ये जो राइटर है वो बता रही हैं कि एक उडुपी में एक आदमी था. उन्होंने उनको राइटर को एक स्टोरी बताई थी, अपनी स्टोरी बताई थी कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो स्कूल जाते थे और उनके जो फादर थे वो एक पुजारी थे मंदिर में, और वो हमेशा जब भी स्कूल जाते थे रास्ते में वो मंदिर के आगे झुककर प्रे करा करते थे हाथ जोड़ करके कि भगवान उन्हें कम से कम एक पेयर ऑफ शूज़ तो दे ही दे. After 30 years, the writer visited the town and the temple. Now the place was nearly empty. अब जब 30 years के बाद उस स्टोरी जब वो बच्चे ने वो पर्सन ने सुनाई थी, और तो वो 30 years बाद जब वो दोबारा उसी जगह पे विज़िट करती है, देखती हैं वो दोबारा वही टाउन वही टेम्पल में जाकर उसको विज़िट करती हैं. अब वो जगह वो बताती हैं कि वो नियरली यानी वो डेजोलेटेड यानी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर अब नहीं रहते थे. एंड द न्यू प्रीस्ट लिव इन द बैकयार्ड ऑफ द टेम्पल. प्लास्टिक चेयर्स, रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी, और जो वहाँ का जो नया प्रीस्ट था वो मंदिर के बैकयार्ड में रहा करता था. एंड अ यंग बॉय केम रनिंग. अब इतनी देर में वो देखती है कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो भागता हुआ आया. एंड ही वॉज वेयरिंग ग्रे कलर्ड स्कूल यूनिफॉर्म, सॉक्स एंड शूज़. ही हैड अ स्कूल बैग हंग ऑन हिज शोल्डर्स. ही थ्रू इट ऑन द बेड एंड रैन अवे. ना इधर वो एक बच्चे को देखती हैं, उसने अपना स्कूल बैग उठाया हुआ है, उसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म, सॉक्स और शूज़ सब पहने हुए हैं. वो आता है भागता भागता और अपना बैग उतार करके वो बेड पर रख देता है और फिर चला जाता है वापस भागते हुए. The writer wants to say that the financial position of the priest at the temple had improved over the last 30 years. अब वो रियलाइज़ करती हैं राइटर कि इन 30 सालों में जो वहाँ की जो फिनेंशियल पोजीशन है, कंडीशन है प्रीस्ट की, वो अब सुधर गई है. Now the priest could afford shoes for his children. She was reminded of another boy who got a pair of shoes. अब उसको एक और बच्चे की याद आती है, उसको ध्यान आता है जो कि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रे कर रहा था. उसको शूज़ मिले थे एक्चुअली वो कि he prayed to the God that he may never lose the shoes that he had got. यानी अब उसको ऐसा लगता, वो भगवान जी के सामने खड़ा होकर के प्रे कर रहा था कि भगवान वो कभी भी इन शूज़ को खोए ना. अब the goddess had granted his prayer as the boy never lost his footwear. This shows us that the underprivileged value anything that they get because they have been longing for it. अब इससे हमें पता चलता है जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, जिन्हें आसानी से कुछ चीज़ नहीं मिलती है, उनको जब कोई चीज़ मिलती है तो उसको बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि वो बहुत तरसे होते हैं उसके लिए, उन्हें बहुत मांगा होता है उन चीज़ों को. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on periphery of Delhi yet miles away from it metamorphically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage and running water, live 10,000 rag pickers. Now here the writer has described the area where these rag picker boys live, and where do they live? They live in Simapuri, which is located on the outskirts of Delhi, and it was very different from the capital of the country. यानी दिल्ली जैसा दिखता है मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये जो सीमापुरी है वो आउटस्कर्ट्स यानी आउटर एरियाज़ में, दिल्ली के आउटर एरिया में है.
और वो वैसा नहीं दिखता जैसा यूजुअल जो दिल्ली जैसा दिखता है. In 1971, when these rag pickers had migrated from Bangladesh, the area had been a wasteland. अब वो बोलते हैं 1971 में जब ये रैग पिकर्स बांग्लादेश से आए थे यहाँ पर सीमापुरी में, तब वो वेस्टलैंड था. वैसे वो आज भी उसकी जो है हालत कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन अभी वो खाली नहीं है. एम्प्टी क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर उसके जैसे बहुत सारे रैग पिकर्स वहाँ पर आकर के रहने लगे हैं. And almost 10,000 rag pickers lived there in structures made of mud with roofs made of thin sheets of tin or plastic material called tarpaulin. And there was no sewage, drainage or running water facility in Simapuri. यानी वो बिल्कुल उसकी जो सीमापुरी की जो हालत है ना सीवेज की मतलब फैसिलिटी, ना ड्रेनेज, ना रनिंग वाटर. दे लिव्ड इन अनहाइजीनिक कंडीशंस. अब वो ऐसा एक कहते हैं एक पीस है वेस्टलैंड का ही, जहाँ पर पूरे सिटी, पूरे दिल्ली का गार्बेज वहाँ पर कलेक्ट होता है. दीज पीपल आर स्टार्टेड लिविंग देयर इलीगली. वहाँ पर वो इलीगली रह रहे हैं, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि उनके पास रेशन कार्ड्स भी हैं. वील स्टडी इन फर्दर लाइन्स. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अभी जो राइटर है वो बता रही है कि ये जो लोग हैं जो सीमापुरी में रह रहे हैं, उन्हें 30 ईयर्स हो चुके हैं इलीगली यहाँ पर रहते हुए, विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, कुछ पॉलिटिशियंस, उन्होंने उनको राशन कार्ड्स और वोटर जो है ना आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड उनको प्रोवाइड करा दिया, जिससे कि वो लोग अपने और अपने फैमिली के लिए कुछ ग्रेन्स, कुछ जो अनाज है वो ख़रीद सकते हैं और उनको वो मिलता है. इससे क्या होता है कि वो जो पॉलिटिशियंस वो हेल्प करते हैं उन्हीं को ही वो आगे वोट देते हैं. अब वो जो राइटर है वो एक बार उन्होंने एक ग्रुप, एक जो औरतों के एक ग्रुप से उन्होंने पूछा, जो कि टैटर्ड साड़ीज़, यानी उन लोगों ने टॉर्न साड़ीज़, फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी. तो उनसे पूछते हैं कि वो लोग वहाँ पर ढाका में अपना ब्यूटीफुल जो है ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स, वहाँ से ढाका में अपना घर छोड़ करके क्यों आए हैं. तो बोलते हैं कि अगर इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी फैमिलीज़ का पेट भर पा रहे हैं, और कहते हैं ना कि खाली पेट नहीं उन्हें सोना पड़ रहा है, पेट भर उन्हें खाना मिल रहा है और वो आराम की नींद अगर ले रहे हैं, तो बोलते हैं कि हमें यहीं पर ही रहना ज़्यादा सही लगता है. और वहाँ पर जाना, उन फील्ड्स में जा कर के रहना जिन्होंने हमें कोई अनाज ही कभी नहीं दिया, हमें तो यही बेटर है कि हम यहीं रहें और गार्बेज ये रैग पिकिंग ही करें. Whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. अब वो बताते हैं कि जहाँ पर भी दे स्पेंड देयर लाइफ मोर लाइक एज नोमैड्स, यानी उन्हें जहाँ पर भी दिखता है कि यहाँ पे खाना उन्हें मिल सकता है, वो वहीं पर ही अपना टेंट, जो टेम्प्रेरी जो ट्रांजिट होम्स हैं, टेम्प्रेरी होम्स अपना वहाँ पे टेंट लगा करके वो बना देते हैं. और जो उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी धीरे धीरे बड़े होकर इसी बिज़नेस में, और उनका क्या बिज़नेस है, रैग पिकिंग. सीमापुरी में रहने वाले लोगों का एक ही काम है, उनका जो सर्वाइवल का जो एक ही ज़रिया है वो है रैग पिकिंग. और सालों साल जो है वो लोग कहते हैं ना, एक इस आर्ट में, इस रैग पिकिंग के आर्ट में वो लोग दिन ब दिन फाइन होते रहते हैं. उसी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स का, अपने एल्डर्स का ऐसे ही हाथ पिटाते हैं. गार्बेज उनके लिए क्या है, गोल्ड. वो उनका कहते हैं ना एक खाने पीने का ज़रिया, उनके सर्वाइवल का ज़रिया, उनकी डेली ब्रेड, उनके ऊपर की छत, उनकी रूफ, वो सब किससे उनका आता है, कौन प्रोवाइड कराता है, दिस गार्बेज ओनली. आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप. अब
जो साहिब है वो बताता है राइटर को कि कभी कभी उसे गार्बेज में से कभी 1 रुपये का सिक्का, कभी 10 रुपये का नोट भी मिलता है. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. अब वो बोलता है कि अगर कभी किसी को सिल्वर का कॉइन मिल जाए या ये जो 10 रुपये नोट या जो 1 रुपये का जो सिक्का है वो भी मिल जाता है, तो वो बोलता है कि अगर ऐसा गार्बेज में मिलता है तो कोई क्यों रुकेगा, for there is a hope of finding more. It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. And for the children the garbage dump was a means of fulfilling their dreams, although partially, while for their parents it was a means of aiding survival by providing the basics, that is food, clothing and shelter. यानी बच्चों के लिए जो गार्बेज जो रैग पिकिंग था उसका एक दूसरा ही वो था, मतलब था, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए उनको बेसिक जो उनकी नीड्स थी वो प्रोवाइड कराने के लिए उसका ज़रिया था, उनके सर्वाइवल का वो एक ज़रिया था, जो कि उन्हें खाना, क्लोथिंग, शेल्टर सब इसी के ज़रिए उनको प्रोवाइड होता था. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it, standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. Now, one winter morning, the writer saw Sahib standing by the fence of a club, and he was watching a tennis game being played by 2 young men. Sahib liked the game but could not play it. अब साहिब को पसंद तो था लेकिन वो खेल नहीं सकता था. अब वो राइटर को आगे बताता है कि जो he told the writer that he went inside the club when it would be closed. He was allowed to take swings by the guard there. अब जो गार्ड था, जब अंदर कोई नहीं होता था उस क्लब के, जहाँ पे वो खड़ा होकर फेंस के पीछे खड़ा होकर के देख रहा था मैच, वो बताता है राइटर को कि जब गार्ड उसको अंदर जाने देता था जब वो क्लोज होता था, यानी अंदर कोई खेल नहीं रहा होता था, तो गार्ड उसको अलाउ करता था और उसको स्विंग्स भी यूज़ करने के लिए उसको अलाउ करता था साहिब को. The writer saw that Sahib was also wearing tennis shoes. They did not look appropriate with his dress, which was worn out and had faded. अब वो बोलता है कि साहिब ने भी जो है टेनिस शूज़ पहने हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे उसकी ड्रेस के साथ, जो कि बिल्कुल फटी हुई थी और फेडेड भी थी. He told the writer in an attempt to justify himself that someone gave him the shoes. अब वो अपनी बात को जस्टिफाई करता है, बोलता है कि ये तो उसको किसी ने दिए थे. She however figured out that he had got them from a garbage dump. लेकिन जो राइटर है अनीस जंग, उनको वो समझ जाती हैं, उनको ऐसा समझ में आ जाता है कि ये जो उसने शूज़ पहने थे, जो टेनिस शूज़ पहने थे, वो उसको गार्बेज डंप में से ही कहीं से मिले थे. They must have been thrown away by a boy from a rich family as he did not want to wear them anymore. Probably they had a hole or two in them, due to which he did not want to wear them. On the contrary, Sahib was not bothered by this fact and had no problem wearing them, as he could not afford anything better than that. He walked barefoot, and to wear a shoe even with a hole was like a dream for him. Although due to the garbage dump, Sahib's dream of wearing shoes had been partially fulfilled, but his desire to play tennis would never be fulfilled. Now अब जो ये पूरा पैराग्राफ है, फ्रॉम साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ से लेकर के बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. इसका मतलब है कि जो साहिब है उसने टेनिस शूज़ पहने हुए थे. अब वो बोलता तो है कि ये उसको किसी ने दिए थे, जो राइटर अनीस जंग, लेकिन वो समझ जाती हैं कि ये झूठ बोल रहा है ये बच्चा और उसको ये गार्बेज डंप में से ही मिलेंगे. बट उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेचारा तो चाहे वो होल वाले शूज़ हों, चाहे वो वैसे बेयर फुट क्योंकि वो रहता था, तो उसके लिए तो बेयर फुट रहने से अच्छा है कि चाहे वो होल वाले शूज़ ही क्यों ना हो, चाहे वर्न आउट शूज़ ही क्यों ना हो, एटलीस्ट उसे पहनने तो मिले. उसका तो एक सपना था. लेकिन अब यहाँ पर राइटर आगे बता रही है कि गार्बेज डंप के थ्रू साहिब का एक छोटा सा सपना टेनिस शूज़ पहनने का, वो तो पूरा हो गया. नेचुरली वो पार्शियली उसका ये जो ड्रीम था ये फुलफ़िल हुआ था, लेकिन उसका एक और डिज़ायर, व्हाट वाज दैट डिज़ायर, टू प्ले टेनिस. लेकिन अनीस जंग बोलती है कि ये तो वो उसका जो सपना है ये कभी पूरा शायद कभी हो ही नहीं पाएगा. This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister
I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry Now, he would carry so light over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. Now, here one morning the writer met Sahib who was on his way to the milk booth. अब एक बारी जो एक मॉर्निंग उसको जो राइटर है वो साहिब को दोबारा मिलती है, लेकिन इस बारी वो क्या देखती हैं, उसके जो कंधे पर था वो रैक पिकिंग वाला वो बैग नहीं था, उसके जो हाथ में था, ही वॉज होल्डिंग अ स्टील कंटेनर. एंड वॉट ही टोल्ड her, Sahib told her, he told her that he had got a job at the nearby tea stall and he would earn 800 rupees a month and get meals too. अब उनको बताता है कि उसने जॉब शुरू कर दी है और उसका काम क्या है, वो टी स्टॉल पर अब एक काम करता है. उसकी 800 रुपीज़ उसकी पर मंथ सैलरी थी और उसको सारे टाइम का उसको खाना भी प्रोवाइड किया जाता था. नो व्हेन द राइटर आस्क्ड हिम कि उसको उसकी जॉब पसंद है या नहीं, तो वो क्या कहते हैं, देखती हैं उसके चेहरे पर कि उसकी जो फेस है उस पर जो एक केयर फ्री जो लुक थी वो कहीं गायब हो चुकी थी. एज नाउ साहिब वॉज वर्किंग विद समवन एल्स and was carrying his master's container. He was burdened with responsibility. जब वो अपना कहते हैं ना अपना मालिक खुद था, यानी अपना मालिक खुद कैसे, जब वो रैक पिकिंग करता था वो अपनी मर्ज़ी की करता था, अपने कंधे पर अपना बैग ढोता था, लेकिन आज वो रैक पिकिंग वाले बैग की जगह उसके हाथ में कैनिस्टर है वो अपने मास्टर का, यानी अपने मालिक का, जो कि जो टी स्टॉल था उसका ओनर था. Earlier, as a rag picker, Sahib would carry his own bag and was his own master. अब वो अपना मास्टर खुद नहीं, यानी अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है, वो किसी के अंडर काम करता है, इसीलिए उसके फेस पर जो एक केयरफ्री लुक थी वो कहीं खो गई थी. With this, the first part of the story is over, and in the next video, I'll explain you the second part of the story. The title of the second part is I Want to Drive a Car.